Hello students, today we'll be doing a new topic, mensuration, cube, cuboids and cylinder. This is exercise 17.4 in your book. Okay, first let me give you the formulas for cube, cuboid. Formulas for cube and cuboid. First of all, what is a cube? You might know what is a cube, like for example a Rubik's cube. All sides are same, all sides are squares. That is a Rubik's cube. Correct. This is how a cube looks like. This is how a cube looks like, where all sides are same. Okay, now what are the formulas for the cube? See, for the cube, the surface area, the total surface area is 6a square. You call it surface area, you call it total surface area. It is 6a square. I'll explain you how. Then lateral surface area is 4a square. Okay, and the volume of the cube. This volume will be used in the next exercise, but still write it down here only. Volume of the cube is a cube. First copy the formulas and then I'll explain you how the formula comes. Cuboid. How does a cuboid look like? It is a rectangular solid. It is a rectangular solid. Like this. You can see there is a rectangle here. This rectangle has length, breadth, and this is height of the rectangle. In this case, in cube, all sides are equal. All sides are a only. Okay. Now, for cuboid also, we have to know the total surface area. Total surface area. See, what does the total surface area means? For example, I have this box. Okay. Surface area means 1, 2, 3, 4. All four sides of the, and plus this side and this side. ये पूरा cover, समझो इसको पूरे को color करना है. So all these parts 1, 2, 3, 4. All four parts will be colored. This part and this part as well. All these 6 parts will be colored. Okay. So this is called as the surface area. Correct. So here also in this cuboid there are 1. See, ये front face, ये side face, ये भी side face है, ये bottom face, ये top face और इसके पीछे back side में ये वाला face. Total 6 faces है इस cuboid के. ठीक है. So उस 6 faces के basis पे, so this face, see this is the height. ये line जो है ना सारी standing, ये height है. So this is also the height. So if I want to calculate the area of this rectangle का area का formula क्या होता है? Multiply the two sides. So see, this is a rectangle, length into height. ये इस face का मिलता है. वैसे similarly this face, breadth into height, you get it of this face. फिर ये वाला face जो है, ये भी total 6 faces है, correct? And opposite faces same होते हैं. ये दोनों face same है, ये दोनों opposite same है और नीचे है ऊपर वाले सेम है. ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलता है? एक एक फेस का जो फॉर्मूला है, लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच, प्लस नीचे ये एल इंटू बी, ये वाला एल इंटू बी. ओके. इनफैक्ट फर्स्ट राइट एल इंटू बी, एल इंटू पी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच. ये तीनों एक एक साइड हुए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज टोटल 6 साइड्स है. ये 3 है, 1, 2, 3 और इंटू 2. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला. ऑल्दो वो एग्जाम में आएगा नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है. कैसे याद रखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट,
हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, और फुल ब्रैकेट, दोनों के बीच में एडिशन साइन एंड बाजू में 2, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मीन्स साइड के एरियाज। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्यूबॉइड, तो लैटरल सरफेस का मतलब क्या होगा इसका? लैटरल सरफेस मतलब अगर ये इसका समझो, अगर ये इसका टॉप सरफेस है तो लैटरल मतलब ये साइड के वॉल्स 1 2 3 4, लैटरल मतलब ये साइड के वॉल्स, टॉप और बॉटम नहीं, ये साइड के वॉल्स, दैट इज़ कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। ओके, सो यहाँ पे भी लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये एक, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये टॉप और बॉटम हटा देना है, तो इसमें से टॉप और बॉटम हटा देंगे तो लैटरल सरफेस एरिया क्या मिलता है? लैटरल सरफेस एरिया विल बी 2LH प्लस BH, और इसमें से अगर H कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 2HL प्लस B। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूलाज। एंड जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम इज़ L इंटू B इंटू H, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन द फर्स्ट 17.4 एक्सरसाइज वी विल ओनली यूज़ दिस टू फॉर्मूलाज, वॉल्यूम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सो क्यूब में हर एक सरफेस, सी क्यूब में जैसे अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A इंटू ए स्क्वायर। सो एक साइड A स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर में टोटल 6 साइड्स है, सो टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। एक फेस का एरिया A स्क्वायर होता है, तो ऐसे 6 फेसेस है तो टोटल 6A स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 वॉल्स, टॉप और बॉटम नहीं, तो 4 वॉल्स है तो 4A स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू ए, दैट इज़ A क्यूब, बिकॉज तीनों साइड्स A है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब आ जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, then let's also understand the formula of cylinder. So cylinder means it looks like this, ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल. This is how a cylinder looks like. Okay, now no need to understand the derivation here, directly understand the formulas. That is the total surface area of a cylinder is 2 pi r plus h. Now what is r? r is the radius of the cylinder. Radius means ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे ये सर्कल, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस. Radius of the cylinder. This is the radius of the cylinder. This is the height of the cylinder. यहाँ से यहाँ तक. Okay, this is the height of the cylinder. और ये radius. So radius और height को यहाँ पे put करते हैं. Pi क्या होता है? Pi is 22/7. Or if in the question it is given use 3.14, then you will use 3.14. Otherwise always we use 22/7. So total surface area is this. Then curved surface area. Cylinder में होता है curved surface area. See, cylinder means let's see this bottle. It is cylindrical in shape. देखो ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, 2 सर्कल्स नीचे और ऊपर, एंड दिस इज कर्व्ड पार्ट. ये जो है वो कर्व्ड पार्ट है. सो इस कर्व्ड पार्ट का अगर एरिया चाहिए, सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट का, देन फॉर्मूला इज 2 pi r/h. और अगर टोटल चाहिए, ये कर्व्ड पार्ट प्लस टॉप और बॉटम टोटल चाहिए पूरे सिलेंडर का, then it is 2 pi r bracket r plus h. Okay, and if we want the volume of the cylinder, then it is pi r square h. Note down these formulas, 3 formulas for each.
Draw the diagram and write down the formula. It will be very useful in each and every sum. Now, directly let's start with the exercise. 17.4, question number 1. Let's understand the question. It says the length, breadth and height of a rectangular box is 30, 25 and 18 meters. So length is 30, breadth is 25 meters and height is 18 meters respectively. Find the cost of painting its outer surface at 12 rupees per meter square. So cost ढूंढना है हमें, ठीक है. We have to find the cost and the rate is given as 12 rupees per meter square. अब ये रेट और कॉस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? सी, किसी भी चीज़ का कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये जो जहाँ पे आपने ये फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, उसी के नीचे लिख दो. कॉस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेट इनटू एरिया या वॉल्यूम, जो भी दिया है क्वेश्चन में. रेट इनटू इधर एरिया और वॉल्यूम, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है. रेट क्या दिया है? मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर, सी यूनिट अगर स्क्वायर में है ना, यूनिट अगर स्क्वायर में है मतलब वो एरिया है. यूनिट अगर क्यूब में है, क्यूब, मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल, तो वो वॉल्यूम है. अंडरस्टैंड दिस? ओके. नाउ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस एरिया. पेंट करना मतलब ये जो आउटर सरफेस एरिया है ना, इसको पेंट करना, ये बाहर के एरिया को. ओके, पूरा ऊपर नीचे सब जगह पे. तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक द टोटल सरफेस एरिया. वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट. सी, अगर सिलेंडर के कलर करने की, पेंट करने की, कवर करने की बात होती है तो दैट मीन्स इट इज़ एरिया. जब कैपेसिटी की बात होती है कि अंदर कितना पानी है, अंदर कुछ है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, कैपेसिटी की बात होती है, तो वी यूज़ वॉल्यूम फार्मूला. ओके, हियर वी विल यूज़ टोटल सरफेस एरिया ओनली. फार्मूला इज 2LB plus BH plus LH. You have to always use the formula. So 2 bracket L into B. L is 30 into 25 plus B into H, 25 into 18 plus L into H, 30 into 18. Multiply this. So this will be 750 plus 25 into 18 will give me 450 plus 30 into 18 will give me 540. Okay, so 2 into, add all these, 540 plus 450 plus 750, you will get 1740. So we are finding the total surface area. Okay, we are finding the total surface area. So total surface area is into 2, 1740 into 2, that is 3480. And I told you area is in square, that means meter square. एरिया का यूनिट होता है या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर.
once we get the area, total surface area, then I will find the cost. कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? कॉस्ट इज रेट इनटू एरिया, because in this question we are finding the area. So rate into area. What is the rate? 12 rupees. What is the area? 3480. मल्टीप्लाई दिस. कॉस्ट है ये, कॉस्ट मतलब पैसा कितना लगेगा, ठीक है. मतलब इतना एरिया 3480 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है, ओके. और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट है 12 रुपीज़. तो टोटल 3480 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा? तो वी विल मल्टीप्लाई इंटू 12. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट द आंसर एज 41760. ये पैसे है, कॉस्ट है ये. सो यहाँ पे रुपीज़ साइन आएगी, ओके. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, कॉस्ट. Copy the sum. सी वेर एवर यू हैव रिटन दिस फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड, उसी में ऐड करो फॉर्मूला फॉर रूफ या फ्लोर. इफ दे आस्क यू रूफ या फ्लोर, सी ये होता है रूफ ऊपर का, सी ये है क्यूबॉइड का रूफ, ठीक है, और ये है उसका फ्लोर. दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है. तो रूफ भी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर भी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके. ये चीज़ याद रखना, रूफ इज लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर इज ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके. नेक्स्ट question number 2. Now in question number 2 it is given a hall is 150 meters long and 25 meters wide. So long 150 meters है, wide मतलब breadth 25 meters है, ठीक है. If its height is 6 meters, height is 6 meters, all three dimensions are given, okay. If its height is 6 meters, find the cost of whitewashing its 4 walls. Whitewashing मतलब कलर करना, ठीक है. Whitewashing its 4 walls. सी किसको वाइट वॉश करना है? सिर्फ वॉल्स को, 4 वॉल्स को. 4 वॉल्स का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया. 4 वॉल्स मीन्स lateral surface area, okay. 4 walls means lateral surface area, okay. And the rate is given as 20 rupees per meter square. मतलब पहले मीटर स्क्वायर में आंसर मिलेगा और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो पहले लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है. So lateral surface area. Check the formula of lateral surface area. It is 2h L plus B. Lateral surface area बोलो या 4 walls बोलो, it is one and the same. You should know. If they ask you 4 walls, you should know the formula. If they ask you lateral surface area, the same formula. You should remember the formula. Let's put the values. So 2 into 6 bracket 150 plus 25. So 12 into 175. This will give you 2100 meter square lateral surface area. If the lateral surface area is this, then what will be the cost?
रेट इंटू एरिया. सो रेट कितना है 20 रुपीज़ इंटू 2100 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज 42. ये कॉस्ट है, कॉस्ट. सो 42,000 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. Now there is one more additional question here. If you see carefully, there is one more additional question here. Also find the cost of polishing its floor at a rate of 40 per meter square. So floor को polish करना है, floor polish करना है at a rate of 40 rupees per meter square. सो फ्लोर को पॉलिश करना है मीन्स पहले फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना बड़ा फ्लोर है. तो फ्लोर एरिया कैसे निकालते हैं? फ्लोर एरिया, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्लोर एरिया? जस्ट नाउ आई गिव यू. फ्लोर का एरिया निकालना है मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट इज़ द फ्लोर एरिया. व्हाट इज़ द लेंथ? लेंथ इज़ 150, ब्रेथ इज़ 25. दिस विल गिव यू द फ्लोर एरिया. 3750 meter square. This is the floor area. And they are asking you cost कितना लगेगा? Means 40 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है फ्लोर पे. 40 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर. सो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? Will be equal to what is the rate into the area. So rate is 40 rupees, area is 3750. Your answer will be 150000 rupees, that is 1.5 lakhs. पैटर्न समझो. फर्स्ट वी फाइंड द एरिया और फिर उस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट पता चलता है. ठीक है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. कॉस्ट इज रेट इनटू एरिया. सो फ्लोर का पूछा था तो फर्स्ट वी फाउंड floor area and then we multiplied it with the cost. Copy it. Next, question number 3. Very simple question. Find the side of the cube whose total surface area is 3750 meters square. So they have given you the total surface area. Total surface area का formula क्या होता है? Total surface area is of a cube. They are talking of the cube. You can just flip the page and see the formula for total surface area of a cube. It is 6a square. It is 6a square.
So total surface area is 6a square. Now the value of total surface area is 3750. So I'll put 3750 here equals 6a square. This 6 will get divided here. So 3750 upon 6 equals a square. 3750 upon 6 divided. You will get the quotient as 625 a square. Now 625 is the square of which number? It is 25 square. You will get the value of a as 25 meters. That is the side of the cube. A is nothing but the side of the cube is 25 meters. स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे 625 किसका स्क्वायर है 25 का. सो हमने स्क्वायर रूट लिया. ओके copy this sum. Now in the previous sum I missed one part here. हमने फाइंड किया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 walls. बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 walls एंड द रूफ भी बोला है इसमें, ये पहले पार्ट में जहाँ पे रेट 20 रुपीज़ है ना, तो उसमें रूफ भी बोला है. सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले रूफ का एरिया निकाल देते हैं. रूफ एरिया इज L इंटू बी, दैट इज 150 इंटू 25, दैट इज 3750 मीटर स्क्वायर. जस्ट ऐड दिस पार्ट ईयर. इसके बाद ऐड करना, इसके बाद ये लिखा ये इतना, इसके बाद ये ऐड करना. रूफ एरिया इज L इंटू बी 3750. सो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रूफ 3750 इंटू क्या रेट था 20 रुपीज़ 20. सो यू विल गेट 75,000. ठीक है, यहाँ मिला 42,000, यहाँ मिला 75,000. सो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल्स प्लस रूफ विल बी 42,000 प्लस 75,000. That is rupees 11,700. ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर. आई जस्ट मिस्ड दिस वन पार्ट हियर. सो ऐड दिस. ये वॉल्स का एरिया है, ये रूफ का एरिया है, दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल्स प्लस रूफ इज 1,17,000 रुपीज़. जस्ट डू दिस. Next, question number 4. Interesting one. Question number 4, it says Harshit painted the outer surface area of a cuboidal box. समझो ऐसा एक बॉक्स है और इसने उसके आउटर सरफेस एरिया को पेंट किया. ओके, डायमेंशंस क्या दिए हैं? लेंथ इज 8 meters. दे हैव गिवन 8 इंटू 7.5 इंटू 6. तो वो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है. ठीक है, फर्स्ट वाला लेंथ, सेकेंड ब्रेथ, थर्ड हाइट. 7.5 meters एंड हाइट इज 6 meters. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ दे आर सेइंग दैट ही पेंटेड द आउटर सरफेस एरिया. फाइंड द सरफेस एरिया पेंटेड बाय हिम इफ ही डिड नॉट पेंट द बॉटम ऑफ द बॉक्स.
मतलब समझो ये बॉक्स का टॉप है, ठीक है, उसने टॉप पेंट किया, ये 1 2 3 4 चारों वॉल्स को पेंट किया, लेकिन बॉटम को पेंट नहीं किया, ऊपर का किया और चारों वॉल्स को पेंट किया। तो हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ये चारों वॉल्स प्लस ये टॉप। बॉटम का एरिया नहीं चाहिए बिकॉज उसने बॉटम पेंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो द एरिया पेंटेड बाय हर्षित, क्या एरिया पेंट होगा, बॉटम नहीं किया, चारों वॉल्स किया, 4 वॉल्स मतलब लैटरल सरफेस एरिया, प्लस उसने टॉप को किया मतलब रूफ, करेक्ट। चारों वॉल्स को पेंट किया और रूफ को किया, बॉटम को पेंट नहीं किया, ठीक है। 4 वॉल्स मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला, 2HL plus B, and roof means what is the formula, LB. So I have to put the values here and we will get the answer. Okay, put the values. Two into 6, 8 plus 7.5 plus L into B means 8 into 7.5. So 12, 15.5 plus 8 into 7.5, that is 60. So 15.5 into 12 will give me 186 plus 60, that is 246. Meter square, area to be painted by Harshit. Remaining questions will be done in the next video lecture. That's it for today. Thank you.